Hello students, welcome to our channel Study Hub. In this video, we will learn Chapter 1 Constitution Why and How of Class 11th Political Science book Indian Constitution at Work. So without wasting any time, let's start the video. First, we should learn about why do we need a constitution. Actually, what is a constitution? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें उसकी क्या जरूरत है, सबसे पहले हम ये जानते हैं. सो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड सर्टेन रूल्स, नॉर्म्स, regulations to ensure smooth functioning of a society. Constitution is a kind of document which contains all these rules so that all members in a society can live peacefully and all members can follow the same rules. Now the question arises, why do we need a constitution? हमें एक constitution की जरूरत क्यों पड़ती है? Because constitution performs various functions and these functions are the reasons due to which we need a constitution. Let's know about these functions. First, constitution allows coordination and assurance. Constitution basically provides a basic set of rules which allows coordination and cooperation amongst members of a society, and it provides assurance that all citizens will follow the same rules, and also the Constitution promotes peaceful coexistence of diverse groups and smooth functioning of a society. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप्स रहते हैं, भिन्न भाषाओं को बोलने वाले, भिन्न धर्मों से बिलोंग करने वाले और अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग एक साथ कैसे रहें, ये एंश्योर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन हैड मेड सर्टेन रूल्स सो दैट ऑल सिटीजन्स of diverse groups, or you can say citizens belonging to different groups, can follow those rules and ensure a peaceful coexistence. सभी लोग एक साथ आराम से पीसफुली रह सके और हमारी सोसाइटी स्मूथली फंक्शन हो सके, स्मूथली रन कर सके, ये कौन इंश्योर करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कोऑपरेशन प्रमोट करता है अमंग सिटीजन्स. सभी सिटीजन्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें. सभी कम्युनिटीज, सभी रिलीजन्स, सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ कोऑपरेट करें और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिवेंट किया जा सके, कन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट को अवॉइड किया जा सके, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है. सो बेसिकली अ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस. इट प्रमोट्स कोऑपरेशन अमंगस्ट डाइवर्स ग्रुप्स इन आवर सोसाइटी टू एंश्योर व्हाट? टू एंश्योर smooth functioning of a society and to promote peaceful coexistence of all the groups. Now, second point, allocation of power in society. Allocation here means distribution. So, constitution ने powers को different institutions के बीच distribute किया है ताकि हमें पता हो कि कौन सा decision हमारी society में कौन सा institution ले सकता है. So, we know that government make laws. How do we know? Because the constitution provides the government the authority to enact laws. हम जानते हैं कि हमारे लिए कानून कौन बनाता है? सरकार बनाती है. और ये अधिकार सरकार को, ये अथॉरिटी सरकार को किसने दी है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. सो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द डिसीजन मेकिंग पावर्स इन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में कौन क्या डिसीजन लेगा, किसके अधिकार में क्या डिसीजन है, ये सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है. सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ लॉ दैट बिस्टोज द अथॉरिटी ऑफ एनेक्टिंग लॉज ऑन पार्लियामेंट. जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट हमारे लिए लॉज बनाएगी, इस बात को इंश्योर करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लॉ, एक प्रोविजन प्रोवाइड किया है. आर्टिकल 245 वो प्रोविजन है. आर्टिकल 245 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया tells about the extent of laws made by parliament and by legislature of states. कौन से laws state legislature के अधिकार में है, कौन से laws parliament बना सकती है, इन सभी के बारे में constitution हमें बताता है. So basically constitution distributes the decision making powers in a society. Now after this we will learn about the third function, that is setting limits on powers of government.
कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दिए हमारे लिए रूल्स बनाने के लिए, हमारे लिए लॉस बनाने के लिए, पर उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की पावर्स पर कुछ लिमिट सेट करे ताकि गवर्नमेंट हमारे राइट्स, हमारे मूल्य अधिकार, हमारे फंडामेंटल फ्रीडम्स को वायलेट ना कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स व्हिच नो गवर्नमेंट कैन वायलेट। कोई भी सरकार हमारी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सभी को, हर सिटीजन को, हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी है। ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है। हम अपने व्यूज, अपने ओपिनियंस को कह सकते हैं, लिख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। इस अधिकार को सरकार हमसे नहीं छीन सकती। सो गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट दिस राइट ऑफ सिटीजन्स। So Constitution basically sets some limits on powers of government to make laws and impose rules to prevent arbitrary decisions. कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का आर्बिटरी यानी मनमानी वाला फैसला ना ले जो लोगों के हित में ना हो, सिटीजन्स के इंटरेस्ट में ना हो। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार की पावर्स पर कुछ लिमिट्स को सेट किया है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, fulfill aspirations of society and create a just society. Constitution ensures that government should take certain welfare steps, or you can say welfare measures, to fulfill the aspirations of society and also to establish a just society. सरकार कुछ ऐसे रूल्स बनाए, कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जिससे कि सभी लोगों के एस्पिरेशंस पूरे हो सके, चाहे वो कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, चाहे वो कोई पिछड़ा वर्ग है, सभी का उद्धार हो सके, सभी ग्रुप्स का अपलिफ्टमेंट हो सके। इसके लिए सरकार लॉस बना सकती है, वेलफेयर स्टेप्स ले सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग लॉस टू एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट सिस्टम को एंड करने के लिए, कास्ट के आधार पर जो भेदभाव होता है उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सरकार कानून पारित कर सकती है। सरकार वेलफेयर मेजर्स ले सकती है, कुछ प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकती है। ये अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकार को दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्रिएशन ऑफ अ जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण, एक इक्वल सोसाइटी क्रिएट की जा सके, ये अधिकार भी सरकार को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। दैट गवर्नमेंट शुड एस्टैब्लिश अ जस्ट सोसाइटी। नाउ व्हाट इज जस्ट सोसाइटी? अ सोसाइटी वेयर लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन्ड, जहां पर लॉ और ऑर्डर मेंटेन किया जाता हो, कानूनों का पालन किया जाता हो। इसके अलावा वो सोसाइटी जो कुछ बेसिक वैल्यूज पर आधारित हो, कुछ मूल्यों पर आधारित हो। कौन से वैल्यूज? वैल्यूज ऑफ जस्टिस, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एट एक्सेट्रा। ऐसी सोसाइटी जिसमें लोगों के पास आजादी हो, सभी लोग बराबर हों और सभी लोगों को न्याय मिले। ऐसी जस्ट सोसाइटी का निर्माण सरकार को करना चाहिए। So our constitution directs the government to create a equal and a just society. Now, the fifth point, or you can say the fifth reason or function due to which we all need a constitution. Constitution expresses the fundamental identity of people. किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को एक आइडेंटिटी, एक पहचान प्रोवाइड करता है। So, what kind of identity? Political identity, moral identity, national identity. First is political identity. We all know that we shall abide by our constitution. हम सभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हम सभी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। So basically we all agree to follow certain rules, norms and principles of our Indian constitution. हम किसी और देश के संविधान को नहीं मानते, हमारे लिए केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही मान्य है। तो ये हमें एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, दैट वी ऑल एग्री एंड वी ऑल शैल अबाइड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। सेकेंड आइडेंटिटी इज मॉरल आइडेंटिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को डायरेक्ट किया है दैट वी ऑल शुड फॉलो सर्टेन फंडामेंटल वैल्यूज। हम सभी को कुछ मूल्यों का फॉलो करना चाहिए। किस प्रकार के मूल्य? वैल्यू ऑफ जस्टिस, वैल्यू ऑफ लिबर्टी, वैल्यू ऑफ फ्रीडम, वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। इन सभी मूल्यों को हमारे सिटीजन्स को फॉलो करना चाहिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस मॉरल आइडेंटिटी टू ऑल इट्स सिटीजन। थर्ड आइडेंटिटी इज नेशनल आइडेंटिटी।
हम सभी जानते हैं कि हम सभी इंडियंस हैं. How do we know that we all are Indians? Who provide this identity to us? The Constitution of India provides us this identity, the identity of being an Indian. Now, we will study about the authority of Constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है, क्या अधिकार है, क्यों हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को माने, व्हाट इज द रीजन कि हमें सिर्फ इस कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है. कई बार ऐसे सवाल भी तुम्हारे मन में आ सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता था कि जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इसे ना बनाते और इसके अलावा हम हर इंसान अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना ले कि किसे क्या रूल्स फॉलो करने हैं. क्यों हम उन लोगों के द्वारा बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें. शायद हम जानते भी नहीं है कि किन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया होगा, है ना, फिर भी हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं. सो क्या क्रेडिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, क्यों फॉलो करें हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो दूसरे लोगों ने बनाया है. सो द क्रेडिबिलिटी और यू कैन से द बेसिक लेजिटिमेसी व्हिच आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉज from the fact is that the Indian Constitution was crafted by some experts. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मिलिट्री लीडर्स ने या डिक्टेटर्स ने नहीं क्राफ्ट किया. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ एक्सपर्ट्स की बॉडी ने क्राफ्ट किया है जो प्रोफेशनल्स थे और अपनी अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड थे. फॉर एग्जाम्पल कुछ लॉ की फील्ड में स्पेशलाइज थे, कुछ साइंस की फील्ड में स्पेशलाइज थे, कुछ सोशल साइंसेस की फील्ड में स्पेशलाइज थे. So first point is mode of promulgation. It means how a constitution comes into being. किसी भी संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई है, संविधान का अस्तित्व क्या है, कैसे हमारा संविधान अस्तित्व में आया. It means how a constitution comes into being. So जैसा कि मैंने अभी बताया that Indian Constitution was crafted by a body of experts जिन्हें हम कहते हैं Constituent Assembly members. These members were professionals and specialized in their respective fields. These persons enjoyed immense public credibility also. इनकी लोगों में पब्लिक में बहुत जान पहचान थी, लोग इन्हें जानते थे और इनमें से मेजॉरिटी मेंबर्स वो थे जो हमारी नेशनल मूवमेंट में, हमारे नेशनल स्ट्रगल में लीडर्स थे. इसीलिए इन लीडर्स ने, इन मेंबर्स ने जो संविधान बनाया उसे हम सभी आज तक फॉलो करते हैं, आज तक मानते हैं. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे प्रोसीजर्स के थ्रू बनाया गया. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच रिफ्लेक्टेड अ ब्रॉड कंसेंसस, ब्रॉड नेशनल कंसेंसस प्रेजेंटिंग एस्पिरेशंस ऑफ ऑल डाइवर्स सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में जितने भी डाइवर्स ग्रुप्स हैं, जितने भी अलग अलग रिलीजन्स हैं या अलग कम्युनिटीज, अलग कास्ट के लोग रहते हैं, उन सभी के एस्पिरेशंस को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है. सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्टेड एस्पिरेशंस ऑफ ऑल द डाइवर्स एग्जिस्टिंग ग्रुप्स. एस्पिरेशंस मतलब आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, हर डिफरेंट ग्रुप्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन सभी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मीट करता है. ओके, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्राफ्टेड आउट ऑफ नेशनल मूवमेंट. नेशनल स्ट्रगल के दौरान जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान जितनी भी आकांक्षाएं लोगों की थी, हमारे सिटीजन्स की थी, उन सभी को मीट करने वाला हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है. नाउ आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट द सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी सम रीजन टू गो अलोंग विद इट प्रोविजंस. हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को क्यों माने, क्या कारण है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को माने, ये कारण हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. सो our constitution provides us some substantive provisions to safeguard our rights. It provides a framework of achieving basic justice in society. हर व्यक्ति को न्याय मिले, इसके लिए एक बेसिक फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. It gives some systematic privileges to minority groups of society in order to give them protection against any majority dominance. किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप की राइट वायलेट ना हो, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को और माइनॉरिटी ग्रुप्स को कुछ प्रोविजंस, कुछ सब्सटैंटिव प्रोविजंस और यू कैन से कुछ सिस्टमैटिक प्रिविलेजेस प्रोवाइड करता है, सो दैट दे कैन नॉट बी डोमिनेटेड बाय द मेजॉरिटी ग्रुप्स.
मेजॉरिटी ग्रुप्स ज़्यादा होने की वजह से अल्पसंख्यक ग्रुप्स को डोमिनेट ना करें और माइनॉरिटी ग्रुप्स के इंटरेस्ट अंडरमाइन ना हो, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड ऑल्सो एंश्योर देयर डेवलपमेंट. ओके, आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट द बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन किया है, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सच अ वे द डिजाइनिंग इज डन इन सच अ वे टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री इंस्टीट्यूशंस. सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक संतुलन बना रहे, एक बैलेंस बना रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही इंटेलिजेंट वे में डिजाइन किया गया है टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. कोई भी इंस्टीट्यूशंस दूसरे इंस्टीट्यूशन को डोमिनेट ना करे या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन के पास अनस्टॉपेबल पावर्स ना हो और उस इंस्टीट्यूशन पे एक चेक, एक नज़र बनी रहे, इसके लिए सभी इंस्टीट्यूशन की पावर्स को इंटेलिजेंट वे में डिवाइड किया गया है. सो इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सो दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन गेट्स मोनोपोली ऑफ पावर. किसी भी सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास अनस्टॉपेबल पावर ना आए, मोनोपोली ऑफ पावर ना हो, इसके लिए पावर्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है ताकि एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया जा सके चेक्स एंड बैलेंसेस का, कि सारे इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के ऊपर चेक रख सकें. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है. Our constitution makers, you can think, were so wise that they also introduced amendment procedure in our constitution. कि अगर समय अनुसार ज़रूरत पड़ती है बदलाव करने की तो बदलाव हो सके, इसके लिए अमेंडमेंट यानी कि चेंज कैसे आए उसका प्रोसीजर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिजिड भी हैं और एट द सेम टाइम फ्लेक्सिबल भी हैं. वी कैन चेंज देम एज पर द नीड्स ऑफ टाइम. That's why we call the Indian Constitution is a living document. और इसी को हमने कहा है balanced institutional design. After this, we will see what is principle of deliberation. Deliberation का अर्थ होता है विचार करना, or you can say to ponder. Right? Members of Constituent Assembly followed the process of debates, deliberations and reasoned arguments while discussing on various parts of Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजंस को डिस्कस करते टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने डिबेट का प्रोसीजर फॉलो किया, रीजंड आर्ग्यूमेंट्स दिए, डेलिब्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया, डिस्कशंस किए कि कौन कौन से प्रोविजंस हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ज्वाइन करने चाहिए, कौन कौन से नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर डिबेट्स हुई. ओके, दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रीजन. दिस मीन्स दैट दे हैव नॉट गिवन एनी बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स. कोई भी निराधार बात नहीं कही गई. जो आर्ग्यूमेंट्स लोगों के हित में हो, पब्लिक कंसर्न के इश्यूज से रिलेटेड हो, केवल वही आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड की गई. उसी तरह की डिबेट्स और उसी तरह के डिस्कशंस हुए. ओके, दे हैव डिस्कस्ड द इश्यूज ऑफ पब्लिक कंसर्न. उन्होंने लोगों के इंटरेस्ट को सामने रखा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग जगह से थे, अलग अलग कास्ट के थे, इसीलिए सभी ग्रुप्स के एस्पिरेशंस को सामने रखा गया और तब डिस्कशंस के बाद प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया गया. सिर्फ एक ऐसा प्रोविजन था जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई डिबेट नहीं हुई, कोई बहस नहीं हुई. वो था द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी वन मैन और वन वोट वाला प्रिंसिपल जो हम आज भी अपने इलेक्शंस में फॉलो करते हैं कि मतदान का अधिकार हर एक व्यक्ति को, हर एक इंडियन सिटीजन को होना चाहिए. ये एक ऐसा प्रोविजन था जो बिना किसी डिबेट के पास कर दिया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कर दिया गया. Apart from this, the fifth point which ensures the authority of Indian Constitution is its inheritance of the national movement. असेंबली ने, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी और डेमोक्रेसी को शेप करा ताकि एक कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी और यू कैन से अ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक कैन बी एस्टैब्लिश्ड. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स कि विभिन्न आइडेंटिटीज को रिकॉग्निशन मिलना, रिकॉग्निशन गिवन टू डिफरेंट आइडेंटिटीज एग्जिस्टिंग इन आवर इंडियन सोसाइटी सो दैट इट कैन अडॉप्ट अ कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक. ओके, सो हमने जितने भी प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया वो कहीं ना कहीं हमारी नेशनल मूवमेंट से इनहेरिटेड थे. जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हम बराबरी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी मांग रहे थे अंग्रेज़ों से, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे,
ओके, सॉवरेनिटी की बात कर रहे थे कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, हिंदुस्तान अपना डिसीजन खुद लेगा, ब्रिटिश हमारे डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये सब प्रिंसिपल्स जिनके बारे में हमने अपनी नेशनल मूवमेंट में भी बात करी थी, उन्हीं सब प्रिंसिपल्स को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन 1946। इट रिफ्लेक्ट्स द एम्स एंड गोल्स ऑफ असेंबली। असेंबली के क्या एम्स थे, क्या गोल्स थे, इन सभी को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल फ्रीडम्स, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरह के भारत का निर्माण करना चाहती थी, किस तरह की इंडियन सोसाइटी का निर्माण करना चाहती थी, क्या उनके एम्स थे, क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य थे, उन सभी के बारे में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बात करता है। ये ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन फंडामेंटल फ्रीडम्स के बारे में बात करता है कि कौन कौन सी और किस प्रकार की आज़ादी लोगों के पास होनी चाहिए। सोशल जस्टिस यानी कि एक न्यायपूर्ण समाज की बात करता है। पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी कि सभी लोग राजनीतिक तौर से भी और सामाजिक तौर से भी बराबर हो, इसकी बात करता है। So basically objectives resolution expresses the aspirations, values and objectives of a newly born independent nation। एक नए भारत की आकांक्षाओं के बारे में, एस्पिरेशंस के बारे में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बात करता है। ओके, आफ्टर दिस वी विल लर्न द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस तरह से हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, अब हम ये पढ़ेंगे। The Constituent Assembly was constituted in November 1946 under the scheme formulated by Cabinet Mission Plan। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो स्कीम बनाई थी उसके तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ नवंबर 1946 में। अब हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी तक हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो कितनी क्रेडिबल थी, कैसे लीडर्स थे उसमें, किन किन फील्ड्स से उसमें लीडर्स थे। अब हम पढ़ेंगे इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में। सो ईच प्रोविंस एंड ईच प्रिंसली स्टेट्स वर अलॉटेड सीट्स प्रोपोर्शनल टू देयर रेस्पेक्टिव पॉपुलेशन। ब्रिटिश इंडिया में काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे, ओके, और काफ़ी सारे प्रोविंसेस भी थे, छोटे छोटे प्रोविंसेस। तो उन सभी को सीट्स इस तरह से अलॉट की गई कि 10 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट हो। ओके, सीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 मेन कम्युनिटीज, 6 हिंदूज एंड मुस्लिम्स। 3 कम्युनिटीज के बीच में सीट्स को डिवाइड किया गया, राइट। वोटिंग वॉज डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू वोटिंग हुई। अब ये प्रोसेस क्या है ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि वोटिंग कैसे हुई, थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। Now under the plan of action of 3 June 1947 or the Mountbatten Plan, partition of British India happened। अब असेंबली बनी थी, असेंबली का गठन किया गया कैबिनेट प्लान की मिशन के स्कीम के तहत। लेकिन अब क्या हुआ, 3 जून 1947 का जो माउंटबैटन प्लान है वो पास हो गया था, जिसके तहत ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन होना था। अभी तक इंडिया अनडिवाइडेड था, अब ये डिसाइड हो गया था कि इंडिया को डिवाइड होना होगा और 2 कंट्रीज बनेगी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, राइट। इससे क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने मेंबर्स गठित हुए थे वो रिड्यूस हो गए, है ना। ऑब्वियसली कुछ पाकिस्तान के साइड जाएंगे और कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के साइड। सो द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रिड्यूस्ड टू 299 फ्रॉम 389। पहले 389 मेंबर्स का गठन हुआ था, अब वो घटकर डिवाइडेड इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए 299 मेंबर्स रह गए, आउट ऑफ विच 284 members were present on the day of 26 November 1949। जब 26 नवंबर 1949 को फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को साइन कर दिया गया और ये तय कर लिया गया कि यही हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उस समय 284 मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट थे when they gave their final signatures to the constitutional draft and it was declared as the Constitution of India on the day of 26 November 1949, जिसे हम अपना संविधान दिवस के दिन के हिसाब से भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ वी विल लर्न कि किस प्रोसीजर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या प्रोसीजर्स अडॉप्ट किए, पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमिटीज के बारे में।
सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज में 8 मेजर कमिटीज थी. अगर आप इनका नाम याद कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी गुड एज इट विल एनरिच द क्वालिटी ऑफ योर आंसर्स. पहली कमेटी थी द यूनियन पावर्स कमेटी, जिसको हेड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू. दूसरी कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को भी नेहरू हेड कर रहे थे. तीसरी कमेटी थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हु वाज हेडेड बाय सरदार पटेल. फोर्थ कमेटी वाज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके हेड थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहते हैं, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. फिफ्थ कमेटी थी एडवाइजरी कमेटी, जो फंडामेंटल राइट्स पे, माइनॉरिटीज की राइट्स पे, ट्राइबल्स पे एडवाइजरी कर रही थी, एडवाइस का काम कर रही थी. वो थी सरदार पटेल के अंडर. सिक्स्थ कमेटी थी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सेवेंथ कमेटी थी स्टेट्स कमेटी, हु वाज आल्सो हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. एट्थ कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, हु वाज अंडर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ये 8 कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आप इन्हें लर्न कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ईच कमिटी फ्रेम पर्टिकुलर प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वर देन सब्जेक्टेड टू डिबेट इन असेंबली. हर कमेटी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को ड्राफ्ट किया है, और उसके बाद जब कोई भी कमेटी ड्राफ्ट करती थी, फिर उस प्रोविजंस पर हमारी असेंबली में डिबेट भी होती थी, और डिबेट डिस्कशन होने के बाद ही उसको प्रोविजन को पास किया जाता था. कुछ प्रोविजंस पे वोट होती थी, जहां पर कोई भी सहमति नहीं बन पाती थी, वहां पर क्या होता था, वोट होती थी, और कुछ प्रोविजंस पे वोट नहीं होती थी. तो ये प्रोसीजर्स थे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किए. सो आप ये देख सकते हैं कि कोई मिलिट्री प्रोसीजर नहीं था कि 2 इंसान बैठे और उन्होंने कह दिया, ऐसा नहीं है. 299 मेंबर्स, जिनमें से 284 तो एंड में लास्ट डे सिग्नेचर देते समय भी वहां पर मौजूद थे. इतने सारे मेंबर्स बैठे जो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह बैठे. तब उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में, एक आप कह सकते हैं एक लोकतांत्रिक तरीके से बैठकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन किया. सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट डिजाइन्ड इन आर्बिट्री मैनर. It was designed in a well-crafted way by our Constituent Assembly. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे प्रोविजंस बाहर की कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं. There are some provisions in our constitution which are borrowed from other constitutions. ओके, तो वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं और कौन कौन सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, एक बार वो देख लेते हैं. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लिया है, जो हम आज अपने इलेक्शंस के टाइम पर फॉलो करते हैं. हम इसे भी आगे के चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. फिलहाल के लिए समझिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अडॉप्ट किया. सेकेंड, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, हमने पार्लियामेंट्री वे ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, ये भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया. थर्ड, हमने आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट किया. फोर्थ, हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर. ठीक है, पार्लियामेंट में एक स्पीकर होता है. आपने अगर देखा होगा कभी राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी, तो आपने देखा होगा एक स्पीकर होता है ना. तो वो जो इंस्टीट्यूशन है स्पीकर का, वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया. दूसरा, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे जो ये प्रिंसिपल्स हैं लिबर्टी के, इक्वालिटी के, फ्रेटर्निटी के, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए. थर्ड, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए जान लीजिए, दीज प्रिंसिपल्स डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू टेक सर्टेन वेलफेयर मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इट्स सोसाइटी. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन लिया, जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन लिया, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का प्रोविजन लिया. इसके अलावा हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का प्रोविजन अडॉप्ट किया. तो ये सब वो प्रोविजंस हैं जो हमने दूसरे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करे हैं. ओके, सो आई होप आपको ये चैप्टर अब क्लियर होगा और अब आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. हमने इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को पढ़ा कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस थे, कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉपरेशन अलाउ करता है, एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी सोसाइटी में, है ना. ये सारे फंक्शंस वो थे जो हमने अपने चैप्टर में लर्न करे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है. कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की पावर्स पे भी लिमिट्स लगाता है, इसके अलावा हमारी सोसाइटी में हमारी एस्पिरेशंस को पूरा करने का काम करता है, एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करने का काम करता है, लोगों को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है.
फिर हमने पढ़ा था अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या अथॉरिटी है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कैसे डिसाइड होती है, क्या अधिकार है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्यों माने। इसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अस्तित्व में आया, हाउ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अस द रीजन टू गो अलोंग विद इट्स प्रोविजन, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन की किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंस्टीट्यूशंस को डिजाइन किया है कि वो सभी एक संतुलन बनाए रखें, उनके बीच में एक बैलेंस रहे और किसी के पास भी मोनोपोली ऑफ पावर ना हो। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में डेलिब्रेशन का प्रिंसिपल फॉलो किया गया, डिस्कशंस और डिबेट्स का प्रिंसिपल फॉलो किया ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वी हैव रेड अबाउट कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी प्रिंसिपल्स have been inherited from our national struggle or you can say national movement. After then we have learnt about the making of Indian Constitution, Constituent Assembly का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। उसके बाद कॉम्पोजिशन, कितने मेंबर्स थे, 389 थे जो बाद में डिवाइड होने के बाद भारत के ब्रिटिश इंडिया के 299 रह गए। फिर हमने प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा कि 8 मेजर कमिटीज़ थी और वो सब कमिटीज़ कुछ प्रोविजंस ड्राफ्ट करती थी। फिर उन प्रोविजंस पे असेंबली में डिबेट होते थे और कभी कभी सहमति नहीं होती थी तो कुछ प्रोविजंस पे वोट भी होते थे। लास्ट में हमने लर्न करा कि कौन कौन से प्रोविजंस हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। सो इफ यू लाइक the video then do like, share and subscribe. Thank you students, thank you very much. In the last I will say only that live political science and enjoy political science. अगर आप इस सब्जेक्ट को एंजॉय करेंगे, आई नो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट थोड़ा सा नया है, बट इफ यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट यू विल लर्न ईच एंड एवरी चैप्टर वेरी easily. One more important announcement that every Wednesday we will learn one chapter of class 11 political science on our channel. So please press the bell icon and stay tuned for more updates. Thank you.